Good morning, students. Welcome back to your class. Now, let us complete the chapter today. I stepped at the water as I went on, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. In this line, see the word expending. Expanding means losing or giving out. And just I had stopped the chapter where William Douglas again moving down towards the pool. He started his long journey back to the bottom of the pool, and then he wanted to say that विलियम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वे पानी में नीचे की तरफ जाने लगे, उन्होंने पानी को ही पकड़ने की कोशिश की। और यहाँ पर विलियम अपने इन एफर्ट्स को एक ऐसे इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि रात को एक डरावना सपना देखता है। नाइटमेयर, भयानक डरावना सपना a person sees while sleeping. So he compares his efforts to that person, where a person fights with his dreadful dream and wants to win over him. Means a person जहाँ पर कोई डरावना सपना देखता है और उसे लड़कर उसे हराने की कोशिश करता है। But as we all know, this is an irresistible force. कि हम उसे हरा नहीं सकते हैं। ऐसे ही हालात विलियम के थे जब वो पानी में डूब रहे थे और उनको ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि वो पानी से बाहर आए और अपने आप को पानी से बचा सकें, क्योंकि पानी ने उनको हर तरफ से because he was surrounded by water from all the sides. My lungs ached. I had lost all my breath. My head throbbed. I was getting dizzy. But I remember the strategy would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. See the word throbbed. Throbbed means felt pain in a series of irregular beats. जब आपके सर में थ्रॉबिंग होता है, जब आप बोलते हो ना आई हैव माई हेड इज़ थ्रॉबिंग, मतलब सर में कुछ ऐसे से मतलब थक बजने की आवाज़ आती है। सो दिस इज़ वॉट विलियम डगलस वॉज फीलिंग while he was moving down towards the pool. But he was saying that I remember the strategy. He had that plan. Strategy here means the plan of action he was thinking about. Dizzy means faint and steady. So again, he thought of that strategy and he thought that he would spring from the bottom of the pool and come like cock to the surface. कि फिर से वो नीचे पूल में जाएगा बॉटम में, and again he would come like the cock to the surface. See the word cock. Cock means यहाँ पे जब when you open the bottle, जब आप बॉटल को उसे खोलते हो तो किस स्पीड से खुलती है, स्पीडली खुलती है ना। तो वैसे ही he was thinking that when I went down, I will just give a with the full strength. I put my leg and again I would come at the pool like the cock. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. So here he was planning out. So what he just thought about that? He was saying that, see the word strike out means extend
बाहर की तरफ निकलना. सो ही वॉज सेइंग दैट कि मैं जैसे ही फोर्सफुली कॉक की तरह ऊपर आऊँगा, सरफेस पर आऊँगा, जब मैं क्या करता, अपनी बाहें निकाल कर पानी में ऐसे ऐसे मारता और अपने पैरों से पानी को ज़ोर ज़ोर से हिट करता, यानी कि मैं आराम से स्विम करता हुआ. ऐसा करने पे मैं पूल के एज पर आ जाता. इट मीन्स दैट विलियम एक बार फिर से अपने प्लान को रिकलेक्ट करता है. थ्रैश मीन्स हिट विथ फोर्स, जोर से किसी चीज़ को मारना. सो हियर ही वॉज प्लानिंग टू कम एट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. I went down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. So again he went down and then he opened his eyes. So what did he see? Nothing. So he didn't see anything, just he saw only water and water with a yellow glow, with a yellow stain. And it was dark water means through which he could not able to see anything. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that has no one can understand who has not experienced it. Stark means severe, seized means gripped, जकड़ लेना. So here what William wants to say here, the stark terror, जो extreme terror ने उसको पूरा seize, पूरा capture कर लिया था. And he was so terrorized, he was so fear stricken, and he said that उसे डर को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सिर्फ जिसने उस डर को एक्सपीरियंस किया है. कौन सा डर? दैट मीन्स द फियर ऑफ ड्राउनिंग का. जो पर्सन नीचे जो पानी में डूब जाता है, जो वो फियर वही अंडरस्टैंड कर सकता है, ये फीलिंग वही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसने इस फियर को एक्सपीरियंस किया हो. सिर्फ वो ही उस डर को जानता है कि वो डर कैसा होता है. मीन्स what the writer wants to say that the writer wants to say that who has experienced this fear of water, only that person could understand his feeling, could understand him, how he was feeling at that time of drowning. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Shrieking means screaming. So in this paragraph, यहाँ पे विलियम डगलस बता रहे हैं कि what was the impact of fear on him. उस फियर का इम्पैक्ट उस पर क्या था. हाउ ही वॉज फीलिंग व्हेन ही वॉज ड्राउनिंग डीप इनटू द पूल. और क्या इम्पैक्ट उसमें बता रखा है विलियम डगलस ने. आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर. श्रिकिंग मीन्स ही वॉज जस्ट क्राइंग, ही वॉज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा है. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर. पैरालाइज मीन्स अनएबल टू मूव. इसमें कहा गया ना कि माई लेग्स अब बिकम स्टिफ. उसके लेग्स बहुत स्टिफ हो गए हैं, रिजिड, हार्ड हो गए हैं. और किसकी वजह से हो गए? बिकॉज ऑफ द फियर. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फियर व्हाट विलियम डगलस was facing. Even the screams in my throat were frozen. Means he could not able to scream. वो जब बोलने की कोशिश कर रहा है, even the water just choked him. पानी चला गया. He could not able to speak properly or frozen. It was because of water and because of the fear. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. That means now see the two things. ये पहले भी आपने पढ़ा है that only his heart beat as well as the
पाउंडिंग मैंने पढ़ा था, दैट मीन्स थ्रॉबिंग इन हिज हेड। सिर्फ ये दो चीज़ें उसे शो कर रही है दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, बिकॉज बाकी जो बॉडी है कुड नॉट एबल टू स्क्रीम, उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई है, उसके जो लेग्स हैं, यहाँ पे जो इफेक्ट बता रखा है उसके जो लेग्स हैं वो भी बहुत स्टिफ हार्ड हो गए हैं, अनएबल टू मूव। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। सी द वर्ड रीज़न, रीज़न मीन्स थॉट ऑफ, उसको कुछ प्लान याद आया। बट okay, and then in the midst means in the between of the terror came a touch of reason, means that it is very clear that he was very fear stricken while he was moving down towards the tool, but still he thought of a plan. And what did he think of? I must remember to jump when I hit the bottom, means ये उसको याद था कि when I have to go back, जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा I will hit my legs okay at the bottom and would come back. At last I felt the tiles under me. ठीक है, वो नीचे गया, as he could just feel the tiles under me, means he could see, that means now he's at the bottom of the pool. My toes reached out as if to grab them. वो जैसे ही नीचे किया और उसके जो टोज हैं reached out to grab, grab क्या होता है, means किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना. I jumped with everything I had. So what happened here? And then what he said? I jumped with everything I had. Means जितनी उसकी strength थी उसने उतनी ही मतलब forcefully, वो जितना फोर्स से जंप कर सकता था पैर लगा के, that way he jumped back. But the jump made no difference. Means again he failed. मतलब जितना forcefully उसको जंप करके ऊपर आना था, in that way he could not able to take that much of, and it made no difference. Means again he failed to just to come at the top of the pool. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. So again when he saw that he failed to jump, so again he said that he was surrounded by water from all the sides, and while drowning he was looking for, he was drowning that way, he was looking for some ropes, कोई रस्सी मिल जाए उसको, कोई सीढ़ी मिल जाए या कोई वाटर विंग्स मिल जाए जिसकी वजह से मतलब वो अपने आप को बचा सके. नथिंग बट वाटर का ऐसा उसको कुछ भी नहीं मिला, ना ही वहाँ उसको कोई रोप मिली, लैडर मिली, वाटर विंग्स, बट जस्ट ही कुड सी द वाटर. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. और उस पानी को क्या बता रखा है, अ स्टिंकी येलो वाटर बोल रखा है, दैट मीन्स वॉज हेल्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड. स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me. See the word stark terror. Stark terror means गहरा डर. कह रहा है कि उसकी took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. It means that उसकी पूरी बॉडी में टेरर फैल रहा था, पूरा डर फैल रहा था, जैसे कि जब किसी को जब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है ना, जब पूरी बॉडी में आके इलेक्ट्रिक शॉक, जब करंट पास आउट हो क्या होता है, पूरी बॉडी एकदम ऐसा लगता है कि टेरर स्ट्रिकन हो जाती है, पूरी कंपन हो जाती है. वैसे ही यहाँ पर जो है विलियम डगलस का जो रिएक्शन बता रहे हैं कि उसका रिएक्शन पानी में जब वो डूब रहा है वैसा ही हो रहा है जैसे कि किसी पर्सन को जब कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है उस टाइम वो पर्सन फील करता है कि एकदम अचानक से विलियम ने क्या देखा, देन सी व्हाट डिड सी. सो यहाँ पर जो रिएक्शन बता रहे हैं, दैट मीन्स एंड व्हाट वाज द रिएक्शन हियर, स्टार्क टेरर टुक एन ईवर डीपर होल्ड ऑन मी like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. So see, so what was, so यहाँ पर जो है क्या रिएक्शन बता रखा है, I shook and trembled with fright, वो बहुत ज़्यादा डर गया. My arms wouldn't move, मतलब उसके जो arms stopped moving. My legs wouldn't move, means जो legs हैं वो paralyze हो गए हैं. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. And then while he just want to call his mother, he want to scream, but he could not able, and even as such nothing happened.
इट मीन्स किसी वो चिल्ला नहीं पाया, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, कोई उसको लेटर नहीं मिला, कोई उसको रोप नहीं मिली. एंड आफ्टर दैट ही ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, ही ट्रेम्बल्ड विथ fear. And then strangely there was light. So what happened? I was coming out of the awful water. At least my eyes were. My nose was almost out too. So यहाँ पर विलियम डगलस क्या बोल रहे हैं? तो विलियम डगलस ने कहा है कि अचानक से विलियम डगलस ने क्या देखा? देयर वॉज लाइट. और विलियम बाहर की तरफ निकल रहे थे. और यहाँ पर ऑफुल क्यों कहा गया है पानी को? ऑफुल मीन्स स्ट्रेंज और मीन्स द डर्टी वाटर. तो स्टिंकी येलो डर्टी है, इसलिए इसको ऑफुल कहा गया है क्योंकि अब वो उस पानी में डूब गए. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. क्योंकि उसने कहा ना कि जम तो मैंने लगाया था, but the jump made no difference. वह जैसे ही मतलब बाहर की तरफ आते हैं, so he saw a light. वहाँ पे थोड़ी उसको लाइट दिखती है. एंड उसकी जो आँखें हैं, एक्चुअली पहले अगर हम पानी से बाहर निकलते तो पहले हमारी क्या आती है? आइज़ बाहर आती हैं. then it would be followed by the nose. My nose was almost out too. मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि थोड़े टाइम के उसका मतलब फेस बाहर आता है, फिर थोड़ा उसका मतलब नोज़ भी बाहर निकलता है पानी से. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. सो अगेन वो थर्ड टाइम फिर से विलियम नीचे अंदर की तरफ जाने लगते हैं. सो दिस द थर्ड टाइम ही स्टार्टेड मूविंग बैक टू वाटर. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. The yellowish light was going out. So I sucked for air as he was suffocating. So in order to breathe, he needs air. उसने सांस लेने की कोशिश की, हवा लेने की कोशिश की, but what he got water because he was surrounded by water. The yellowish light was going out. Then all efforts ceased. Cease means ended, means after that जब उसने कहा yellowish light was going out, his all efforts was stopped, ceased out. I relaxed. Even my legs felt limp. Limp means lifeless, unable to move. मतलब उसके जो legs क्या हो गए थे? एक तरह से पैरालाइज हो गए थे. And a blackness swept over my brain. Blackness means he was feeling unconscious here. It wiped out fear. It wiped out terror. So now students look here. इससे पहले कभी भी just हमने जो भी पैराग्राफ पढ़ा, what in those paragraphs what we have written? Stark terror. I was surrounded by water. He was planning कि whenever just he goes down, he would come back with a full force. But now in this paragraph, there is a contrast in the reaction. There is difference in the feeling of William Douglas, उसके behavior में, उसकी thinking में. And this time, he's feeling relaxed now. He just put all his efforts aside and he says that all his efforts seems to be stopped and now he was feeling unconscious. और अब it wiped our fear. और अब उनको लग रहा है, अब उनको डर नहीं लग रहा, उनका जो डर है वो चला गया. It wiped our fear. It wiped out terror. There was no more panic. And now it was quiet and peaceful, means he was getting drowsy, unconscious. इसमें ये होता है स्टूडेंट्स, जब हम बहुत अवेयर होते हैं, when we are in our wits, we know how to fight with the situation. But लेकिन फाइट करते करते वो एक ऐसा टाइम आता है, so where we have to just give up, where just we feel the stage of unconsciousness, where we are moving towards the
unconscious one, we are moving towards the oblivion. तो वो एक फेस ऐसा होता है जहाँ पर हमें लगता है कि नाउ वी गिव अप एवरीथिंग, जहाँ पे हमें कोई डर, कोई फियर, कोई हमें एक्चुअली वी आर नॉट वरीड अबाउट आवर लाइफ. सो दिस इज रियली व्हाट इज हैपनिंग विद डगलस हियर. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी. टू गो टू स्लीप मीन्स बेटा यहाँ पे कहा है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप मीन्स ये उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं. सो दिस इज थिंक व्हाट ही वॉज थिंकिंग राइट नाउ. और ये जो थिंकिंग है ये टोटली डिफरेंट है, टोटली इन कॉन्ट्रास्ट विद द थिंकिंग वाइल ही वॉज थिंकिंग वाइल ही वॉज गोइंग डाउन टूवर्ड्स द पूल. नो नीड टू जंप, करा मुझे कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है. टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी carried gently, to float along in space, tender arms around me. यहाँ पर कहा गया है नो नीड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. जब आप बेहोश हो जाते हो या खुद ऐसा फील करते हो कि जहाँ पे आई फ्लोट अलोंग इन स्पेस, कि मैं स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और यहाँ पे कहा गया है दैट मीन्स टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. कि बस अब ही वॉज मूविंग अनकॉन्शियस है एंड ही वॉज फीलिंग दैट ही इज़ मूविंग इन द स्पेस. और वो फील कर रहा है दैट ही सराउंडेड बाई द टेंडर आर्म्स. टेंडर आर्म्स जैसे कि मदर्स की आर्म होती है, अब उसे ऐसा लगता है वो उन टेंडर आर्म्स में जस्ट मीन्स फील कर रहा है. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और वो उसे ऐसा लग रहा है कि उन टेंडर आर्म्स में जो मदर्स की आर्म के साथ को बोला है यहाँ पे कि नाउ ही इज़ अबाउट मस्ट गो टू स्लीप, अब उसको दैट ही वुड स्लीप नाउ. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. And this statement is very important, students. Underline this statement. I crossed to oblivion. It means the state of being unaware or unconscious of what is happening around one. The curtain of life means life came to an end. That means he was almost dead. उसको ऐसा फील हो रहा है. और अगर इसको मैं लिटरली वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन मीन्स द सेंटेंस इज हाईली मेटामॉर्फिकल. द टू मेन मेटाफर्स हैं यहाँ पे. क्या है, एक ऑब्लिवियन है, एक कर्टेन है. ऑब्लिवियन रेफर किया गया टू द स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस जो कि विच इज़ मार्क्ड बाय डेथ. और यहाँ पर जो है लाइफ इज़ बीइंग कंपेयर टू अ स्टेज परफॉर्मेंस. The show comes to an end when the curtain falls. Similarly, when we cross from our mortal being to the ethereal, which is referred to as oblivion here, the curtain of our existence falls. Our life shows ends. Euphemism to death is made by the phrase the curtain of life. And in other words, I crossed to oblivion and the curtain of life fell means I died. My life chapter ended. So what the William Douglas was feeling? अब विलियम डगलस को ऐसी फील आ रही है कि that means his life came to an end. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, "So here,
व्हेन ही फेल्ट अनकॉन्शियस, जहाँ पर उसको फील होता है दैट ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, मतलब उसको इतना पता है पूल में जो हुआ। लेकिन बट अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, देन आई रिमेंबर नाउ जो विलियम डगलस है, ही वॉज आउट ऑफ द पूल, वो पूल से बाहर है, वो सेफ है और किसी ने उसको बाहर निकाल दिया है। लेकिन किसने निकाला? ओबियसली शायद जो ब्रूशर बॉय था जिसने उसको फेंका, शायद उसी ने बाहर निकाला उसको। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक beside the pool vomit. The chap means the boy, the 18-year boy, Prusher boy जिसने उसको फेंका था, उसको कहा गया है chap. That threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the lockers room. Several hours later, I walked home. I was weak. Now, students, this paragraph is very important. और इनफैक्ट ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है काफ़ी बार. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट? यहाँ पर कौन से एक्सपीरियंस की बात हो रही है? जो मिस एडवेंचर मीन्स जब 18 ईयर ओल्ड बॉय ने उसको टोस किया था, किसमें? यमका पुल में. सो व्हेन ही वॉज ड्राउनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, डिस्क्राइब हिज जर्नी टूवर्ड्स द पूल, और कैसे वो अपने आप को बूस्ट करता है, क्या एफर्ट्स करता है टू कम एट दी, जस्ट क्या प्लान करता है अपने एफर्ट्स में पूल के ऊपर आने के लिए. एंड आफ्टर दैट हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस, कितना जब वो पानी में डूबता है, दैट मीन्स ऑब्वियस है उसका जो फियर है, उसका जो टेरर है, उसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे. इस डूबने का इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पे क्या हुआ. सो उस ये आंसर बनेगा उसका. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. It means he was feeling very weak, tremble कर रहा था. I shook and cried when I lay on bed. मतलब उसके मन में बहुत ज़्यादा दहशत थी, बहुत फियर था. I couldn't eat that night. उस रात उसने खाना नहीं खाया, उसकी बॉडी ट्रेमल कर रही है. He was feeling very weak. और जैसे वो लेटता है वो बड़ा चौंक के खड़ा हो जाता है. For days a haunting fear was in my heart. क्या था? For days heart मतलब उसके दिल में क्या था? haunting fear. और काफ़ी दिनों तक ये fear उसको बार बार haunt कर रहा था. The slightest exertion upset me. कब वो कोई भी थोड़ा physical work करता, he was feeling very मतलब tired, making me wobbly. wobbly क्या होता है? wobbly means weak, feeling weak in the knees and sick to my stomach, means he could not able to move. उसके फीट वॉबल करने लगे, तो बहुत ही वीक है और उसके मतलब वो चल नहीं पाता है. एंड सिक, और एक सिकनेस की फीलिंग होती है किसकी? उसके स्टमक में. सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस और दिस इज़ द इफेक्ट द डगलस हैव while he was drowning in the pool. और उसके डूबने का उसकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ. So beta, this is the answer of this question. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. So अब उसके मन में और ज़्यादा fear develop हो गया. And after that, he never back to that pool. He left that pool because of the this misadventure. And he tried to avoid water whenever I could. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, see beta, Cascades is a kind of waterfall, but after many years, when he came to know about the waterfall, I wanted to get into them. So, यहाँ पे विलियम डगलस बोल रहे हैं कि जब उसने कैस्केड्स के वाटरफॉल वगैरह के बारे में सुना तो he wanted to go there. बट वेन एवर आई डिड, लेकिन जब भी उसने जाने की कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइन और बम्पिंग रिवर्स. देखो बेटा, जो है ना वेडिंग जो टाइन है, बम्पिंग रिवर्स है, ये दीज आर द नेम्स ऑफ द रिवर्स. और बाथिंग इन या नहाने के लिए उसने जाने की कोशिश कहाँ? वार्म लेक. दिस इज़ द वार्म लेक इज़ द नेम ऑफ ए लेक. कहाँ पर है? गॉड रॉक्स में. The terror had seized me in the pool could come back. Means wherever he wanted to go, चाहे वाटरफॉल में जा रहा है या फिर
कहीं भी रिवर वगैरह को देखने जा रहा है, वहाँ पर फिशिंग वगैरह करने के लिए जाता है, सो तो उसका पुराना जो फियर था, he had seized me, captured him and would come back. That means he could not able to just enjoy anything, he could not able to go around these places because of the fear he had experienced at the Yamka pool. It would take possession of me completely. It would take possession means complete hold over him, means the यहाँ पर मतलब किस चीज़ का पोजिशन है, फियर का, कि वो कभी भी अगर यहाँ पे व्हेन ही केम टू नो अबाउट द वाटरफॉल कैस्केड्स के बारे में सुना है, टाइन बम्बिंग रिवर्स के बारे में उसने सुना है, या बाथिंग वार्म लेक्स के बारे में भी अगर वो जो कि गॉट रॉक्स में है जाने की यहाँ पर कोशिश भी करे, तो वो जो डर है उसको कम्प्लीटली अपनी ग्रिप में ले लेते हैं. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और पानी को देख के बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट मिस एडवेंचर, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो हॉरर उसके पूरे हार्ट को ग्रैब कर लेता है. एंड ही कुड नॉट थिंक टू गो अराउंड दीज प्लेसेस. दिस handicap stayed with me. This handicap means a circumstance that makes progress or success difficult. Means the fear that he had with him of water. This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on main lakes. Canoes होता है बेटा small boat. Main lakes, लेक का नाम है फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन. लैंडलॉक सैल्मन, इट इज़ द नेम ऑफ अ फिश. बास फिशिंग, अगेन बास इज़ द नेम ऑफ अ फिश, जो कि किस में है, न्यू हैम्पशायर में है. ट्रॉट फिशिंग, अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ फिश ऑन द डेस्ट्रुइस एंड मेट्रियस इन ओरियन. These are the Deschutes and Meteor in Orion. These are the name of the rivers. Fishing for salmon, ये नाम है फिश का. On the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. It means वो कभी भी फिशिंग के लिए जाने की कोशिश करता है, फिशिंग के लिए जाता है, ड्राफ्टिंग के लिए, कैनोइंग के लिए. Again his fear, that stark terror returned back, and the haunting fear of water followed him everywhere. It ruined or destroyed my fishing trips. Deprived क्या होता है, वांछित, devoid of me of the joy, canoeing, boating and swimming. I used every way I knew to overcome this fear. And after that, he said that I knew to overcome this fear, but held me firmly in its grip. उसने हाथ धरने की कोशिश की. And he also knew to overcome this fear, कि मुझे उसको फियर को ओवरकम करना है. लेकिन फियर उसको इतनी बुरी तरीके से उसने जकड़ रखा था अपने ग्रिप में, कि वो तब जब भी कहीं फिशिंग के लिए या वाटर कैनोइंग के लिए जाता तो इट वुड रिटर्न बैक. सो नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डिड ही वांट टू रिमूव हिज फियर ऑफ वाटर एट लास्ट? सो ऑब्वियस है, यू विल राइट डाउन बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे मैंने फ़िशिंग वगैरह की प्लेसेस का नाम बताया, लेक्स का, वाटर केस वगैरह, टाइन बम्पिंग रिवर्स, बाथिंग वार्म लेक्स ऑफ द गॉट रॉक्स. वो जब भी वहाँ जाने की कोशिश करता था उसका फियर रिटर्न बैक. whenever he wants to go for fishing, canoeing, boating and swimming, his fear of water would return back and it spoiled all his fishing trips. I used every way I knew to overcome this fear.
Finally, but it held me firmly in its finally 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. So how did he plan to remove his fear? So again he thought of an instructor. उसने एक instructor को select किया and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. Now the instructor is there. This instructor would guide him, would just make him learn different skills of swimming. And when did he hire the instructor? He hired the instructor in the month of October. And for how many days just did he learn for swimming? Practice 5 days in a week, an hour each day. 5 days, an hour daily. The instructor put a bell around me. So यहाँ पे student question आएगा, how did the instructor instruct Douglas, or how did the instructor make Douglas a good swimmer? So आपका ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे, इस आपका आंसर इसी में ही है. So how did he instruct him? The instructor put a belt around him, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. So अब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने उसके वेस्ट पे एक बेल्ट बांध दी, रॉप अटैच कर दिया बेल्ट के साथ. वैन थ्रू अ पुली, पुली क्या होता है? एक लीवर. द रन एंड ओवरहेड केबल. सो यहाँ पे केबल क्या है? दैट इज अ थिक रॉप. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. वहाँ पे उसके एक रोप पे डाल दी केबल और उस रोप को उसने बड़े अच्छे से पकड़ लिया. एंड वेल बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे. Back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और यहाँ पर एक्चुअली जो ये इंस्ट्रक्टर इसको ट्रेन कर रहे हैं, तो लास्ट में वो उस रोप को पकड़ते हैं. कभी और उस रोप को वो कभी लूज़ कर देते हैं, कभी टाइट कर देते हैं, और ताकि जो विलियम जो डगलस है आराम से नीचे पानी में जाए, और जो टेरर जो उसको फियर है, जो पानी का जो फियर या डर है, वो आराम से उसको विन ओवर करें. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. क्या बोल रहे हैं कि वो जैसे ही पुल में नीचे जाता, जो उसका फियर है वो फिर से उसको ग्रिप कर लेता. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. कहा वो जैसे पानी में नीचे जाए डगलस, वैसे ही जो इंस्ट्रक्टर के हाथ में जो वो होती है रोप, उसको लूज़ कर देते हैं, सो दैट कि विलियम डगलस आराम से पानी में नीचे जाए और आराम से मतलब ही कुड विन ओवर हिज फियर. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न. ये ओल्ड टेरर क्या था? द टेरर ऑफ वाटर ही हैड एक्सपीरियंस एट द यमका पूल. एंड माई लेग्स फ्रोज. माई लेग्स फ्रोज मीन्स उसके जो लेग्स हैं ही बिकेम पैरालाइज. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक. अब उसको सीखते सीखते इतना टाइम हो गया, तो अब धीरे धीरे उसका जो पानी से जो डर था, जो भय था, स्लैक क्या होता है? स्लैक मीन्स थोड़ा कम होना, मिनिमाइज होना. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एक्सेल. अगर आप लोगों ने स्विमिंग देखी हो तो इंस्ट्रक्टर जो है जस्ट ही मेड यू अ गुड स्विमर बिट बाय बिट. मतलब यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे आपको स्किल्स सिखाता है वन बाय वन. एंड नाउ देन ही टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. तो उसने कहा जब पानी में जाओगे तो आप क्या क्या करोगे? एक्सेल, सांस छोड़ोगे. और जैसे ही आप पानी के आप स्विम करते हो, थोड़ा आप अपने आर्म्स जस्ट वेव करते हो, यू जस्ट गो डाउन, यू कम अप. गोइंग डाउन मीन्स यू आर एक्सेलिंग. कमिंग जस्ट कीपिंग योर माउथ आउट ऑफ वाटर मीन्स यू वांट टू इनहेल ऑक्सीजन. So in that way, just he taught him. Water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit means one by one. धीरे धीरे, step by step. I shed part of the panic. Shed means होता remove. Part of the panic means the fear, the terror he had of water.
just seized me when my head went underwater. Means whenever he goes down inside the water, again his old terror return. So this terror, this fear is slacking day by day whenever he just goes inside the water. So this is all for today, students, and now we will see the next video after this. Okay, thank you, students.